Good evening, everyone. I'm Sayukta from Beautiful Spotless Skin Team, and I'm sure all of you must be keeping good health to look beautiful and smart at all times as first of humans right from the beginning of civilization. We all know proper skin protection is the best thing you can do for the health of your skin today and slow down the effects of aging tomorrow. In today's era, changing weather with excessive heat or humidity increases risk of damage due to UV rays, which makes skin more prone to wrinkles, melasma, and skin cancer. We know that sunscreen is valuable from a skin cancer and sun damage perspective, as well as something that actually protects us from aging or prevent the fine lines and wrinkles. According to survey, 67% of people in India are not yet using sunscreen as daily skincare routine. Several things about sunscreen that we people are not aware of and that make us not to include sunscreen as an integral part of our skincare routine. So to keep you informed, today we are here to know more about sunscreen in skincare regime. So let's connect today with our skin expert, Dr. Jayesh Sanaria, consultant dermatologist based at Morbi, Gujarat. He is one of the most renowned dermatologists of the area. He is the pioneer and chief of Sparsh Skin and Cosmetic Clinic based at Morbi. He is practicing as cosmetic dermatologist since 2007. The doctor and his team are known to offer world-class care and guidance, always putting their patients first. Worked as an active member of scientific committees and various national and international conferences, and also presented papers and posters at state, national, and international level. He is also the treasurer of Indian Association of Dermatology, Venereology, and Leprosy. He has got many honors and awards during his tenure, which include Best Academician, Best Clinic, Best Social Medical Service Award, and so on. It's such a privilege to have you with us, Dr. Jayesh. Welcome. Thank you, ma'am. Thank you so much for nice introduction. Thank you, doctor. Thank you for your valuable time that you are here. And today we are talking about a very important thing, which is the importance and significance of sunscreen. सबसे पहले तो डॉक्टर हम ये जानना चाहेंगे, हमेशा कहा जाता है कि रोज सनस्क्रीन लगाना चाहिए, रेगुलरली सनस्क्रीन लगाना चाहिए, रीएप्लीकेशन भी बहुत जरूरी है, लेकिन आखिर जो लोग जिनका सन के अंदर उतना एक्सपोजर नहीं है, जो बाहर इतना ज्यादा नहीं जाते हैं, उनके लिए भी क्या सनस्क्रीन जरूरी है? रोज हम क्यों सनस्क्रीन लगाएं? Yes, ma'am. Very nice question. Actually, first we will discuss about the ultraviolet rays. There are mainly three types of ultraviolet rays: ultraviolet C, B, and A. Ultraviolet C protects by the ozone layer, but ultraviolet B and A are more damage our skin. आपने पूछा कि हमें घर पे रहना है, आउटडोर में नहीं जाना है, लेकिन हमारे जो विंडोज है, डोर है, तो वो उसमें ग्लासेस है, वो प्रोटेक्शन अल्ट्रावायलेट बी को करता है, लेकिन अल्ट्रावायलेट बी को प्रोटेक्ट नहीं करता है। और सनस्क्रीन नाम इटसेल्फ सजेस्ट सनस्क्रीन, तो हम रेगुलरली मोबाइल यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, गैजेट्स यूज करते हैं, अथवा तो घर में कोई ट्यूबलाइट है तो उसमें भी वेव्स, अल्ट्रावायलेट वेव्स आते हैं, ब्लू लाइट आती है, इंफ्रारेड आते हैं। तो इन सभी चीज से प्रिवेंशन के लिए हमें रेगुलर सनस्क्रीन यूज करना चाहिए और रीएप्लीकेशन भी करना चाहिए। तो इट्स वेरी नेसेसरी टू प्रिवेंट द फाइन लाइन, रिंकल, फोटो एजिंग और फ्रेकल और लेंटिजन। आपने काफी सुना होगा यार, हमारे पास काफी पेशेंट आते हैं कि सर हम घर पे ही रहते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज भी नहीं करते हैं, फिर भी हमारे स्किन थोड़ी डार्क हो रही है। तो इट्स ओनली एंड ओनली ड्यू टू नॉट एप्लीकेशन ऑफ सनस्क्रीन। बिल्कुल, बहुत अच्छे से डॉक्टर आपने बताया कि सनस्क्रीन क्यों जरूरी है, और भले ही हम घर के अंदर रहे या बाहर रहे, हमारा स्क्रीन टाइम भी, चाहे वो लैपटॉप का हो, मोबाइल का हो, लगातार बढ़ रहा है। एलईडी लाइट्स होते हैं, दूसरे तरह के लाइट्स होते हैं, किचन में भी जो लोग काम करते हैं वो भी हीट के तरफ उनका भी एक्सपोजर तो रहता ही है। बिल्कुल, तो इस पर भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन डॉक्टर, जब भी हम सनस्क्रीन खरीदने जाते हैं तो जो बॉक्स होता है, सनस्क्रीन का जो ट्यूब होता है, उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है। कौन सी वो बेसिक चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए? आम तौर पर एक लेमन के लिए एसपीएफ एक चीज है जो हमें थोड़ा बहुत पता है, हमें पता है वो नंबर्स होते हैं, और लेकिन वो भी एग्जैक्टली क्या है ये भी कई लोग नहीं जानते। तो एसपीएफ क्या है, कितना एसपीएफ हमारे लिए जरूरी है, और दूसरी कौन सी बेसिक चीजें हमें ध्यान में रखनी है खरीदते वक्त सनस्क्रीन? यस, वेरी गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा कि सनस्क्रीन कौन से टाइप्स के होते हैं। तो उसमें एक तो फिजिकल सनस्क्रीन आता है और केमिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तीसरा है वो
हाइब्रिड सनस्क्रीन होता है, और फोर्थ वन इज ओरल सनस्क्रीन। लेकिन आपने बोला कि हम कहाँ पे भी मार्केट में जाते हैं तो सनस्क्रीन का बॉक्स पे हम कौन सी चीज को देखना चाहिए, क्योंकि काफी लेमन को पता नहीं होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो आपने बोला कि एसपीएफ। तो एसपीएफ का मीनिंग है सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर। उसके बारे में मैं अगर बेसिक और डिटेल में बताऊं तो अगर हम धूप में जाते हैं विदाउट सनस्क्रीन लगा के और स्किन में हमारा रेडनेस की एरिथेमा है 5 मिनट्स के बाद आ जाती है, अगर हम 30 एसपीएफ वाला सनस्क्रीन यूज करेंगे तो 30 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 150 मिनट्स। तो वन सनस्क्रीन हमको 150 मिनट्स तक प्रोटेक्शन करता है। उसका मीनिंग है मिनिमम एरिथेमा डोज ऑफ प्रोटेक्टेड स्किन डिवाइडेड बाय मिनिमम एरिथेमा डोज ऑफ अनप्रोटेक्टेड स्किन व्हिच इंडिकेट्स द एसपीएफ। और एसपीएफ वो ऐसा है कि वो मेजरमेंट अल्ट्रावायलेट बी रेज को करता है। तो फर्स्ट हमें जो बेसिक सनस्क्रीन यूज करना है, जिन लोग को आउटसाइड नहीं जाना है तो मिनिमम 30 एसपीएफ यूज करना चाहिए। जिस लोग को आउटडोर एक्टिविटी है, स्पोर्ट्स है और कोई भी डिजीज है, फोटोग्राफिक डर्मेटोसिस है, तो उसको मोर देन 50 या 50 एसपी पर सनस्क्रीन यूज करना चाहिए। दूसरी चीज देखना है कि उसमें पीए रेटिंग होती है। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अल्ट्रावायलेट ए विच इज टेक्निक फॉर जापानीज विच इंडिकेट्स द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अल्ट्रावायलेट एज, उसमें भी +1, +2, +3 और +4 आता है। तो मिनिमम पीए +3 होना चाहिए। और तीसरा एक है कि बुश स्टार रेटिंग विच इज measured by the UK company, Bush company has searched. It also indicates the protection against the ultraviolet A. मिनिमम 4 स्टार और 5 स्टार वाला सनस्क्रीन यूज करे तो बेटर है। तो ये 3 चीजें होनी चाहिए, पीएफ +3, बुश स्टार रेटिंग मिनिमम 4 स्टार और 5 स्टार, और मिनिमम एसपीएफ 30 एसपीएफ। चौथी चीज है अपनी स्किन कैसी है, उसके करने के लिए हमें नॉन कोमेडोजेनिक सनस्क्रीन यूज करना है, जेल बेस यूज करना है, लोशन फॉर्म यूज करना है, और मोस्ट इंपोर्टेंट ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन nowadays is very important which covers the ultraviolet A, ultraviolet B, and another factor is also combined with the physical sunscreen, तो is called the hybrid sunscreen। तो ये चारों का कॉम्बिनेशन है वो बेटर है। बिल्कुल। तो हमारी स्किन टाइप क्या है, हमारा वर्किंग कंडीशन क्या है, हमारा एक्सपोजर कितना रहता है धूप में, और प्लस ये जो बेसिक चीजें आपने बताई, इन चीजों का हमें ध्यान रखना ही है जब हम एक सनस्क्रीन खरीदने जाते हैं। आमतौर पे ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि कितना सनस्क्रीन हम अप्लाई करें, मतलब कितना क्वांटिटी होना चाहिए और किस तरीके से अप्लाई करें। कई लोग इसमें भी बहुत कंफ्यूज रहते हैं डॉक्टर, तो हम चाहेंगे कि इस पर भी आप थोड़ी बात करें। सही बात। एक्चुअली मैं आपको एक स्टडी बताऊं तो हमारा इंडियन पॉपुलेशन में 67% पॉपुलेशन आर नॉट यूजिंग सनस्क्रीन। जो लोग यूज कर रहे हैं इसमें काफी लोग को पता भी नहीं है कि सनस्क्रीन कितना अमाउंट यूज करना है। तो उसके बारे में आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। तो उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, कब लगाने का है, और वो अपने सनस्क्रीन पर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट में बताऊं कि अगर हम फिजिकल सनस्क्रीन यूज कर रहे हैं तो इसमें आता है आयरन ऑक्साइड आएगा, टिटेनियम डाइऑक्साइड आएगा, और जिंक ऑक्साइड आएगा, और कैलामाइन आएगा। वो सनस्क्रीन का काम ऐसा है कि वो अल्ट्रावायलेट रेज को रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट, तो हमारे स्किन के अंदर पेनिट्रेट नहीं करने देते हैं। अगर वो सनस्क्रीन हमें अप्लाई करना है तो वो इंस्टेंट इफेक्ट काम करेगा। अगर हम केमिकल वाला सनस्क्रीन यूज करेंगे, यूवी या यूवी प्रोटेक्शन करेंगे, तो वो अल्ट्रावायलेट रेज को एब्सॉर्ब करेंगे, इसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे और फिर वो एनर्जी को रिफ्लेक्ट करेंगे। तो वो अगर हमें यूज करना है तो मिनिमम 15 to 30 मिनट्स बिफोर इसको एप्लीकेशन करना है। अच्छी तरह से उसको रब करना है 2 to 3 मिनट्स। और फिजिकल सनस्क्रीन अगर हम रब नहीं करेंगे, एब्सॉर्ब नहीं होगा, तो व्हाइट कास्टिंग होगा, तो अच्छा भी नहीं लगेगा। तो लगाने के बाद 2 to 3 मिनट उसको मसाज करना है। तीसरी चीज आपने पूछा कि क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। तो हम सनस्क्रीन अगर लगाते हैं तो छोटा छोटा अमाउंट में लगाते हैं। तो उसका 2 रूल्स है। एक तो फिंगर यूनिट का रूल्स है, अगर हमें फेस पे लगाने का है, नेक पे लगाने का है, बियॉन्ड ईयर लगाने का है, तो फिंगर यूनिट मेजरमेंट है, या टीस्पून फुल रूल्स है। मैं दोनों आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट फिंगर यूनिट, तो 1 फिंगर यूनिट, 2 फिंगर यूनिट एंड 3 फिंगर यूनिट। तो 3 फिंगर यूनिट फुल फेस, नेक, पोस्ट ऑरिकुलर रीजन। 3 फिंगर यूनिट अपर लिम्ब, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड। 3 फिंगर यूनिट चेस्ट, 3 फिंगर यूनिट बैक, and 3 to 4 finger unit lower limb. Another ways is the teaspoonful rule. So 1 teaspoonful is equal to 5 ml. So 1 teaspoonful for the face and neck, 1 teaspoonful for the left hand and right hand, 1 teaspoonful chest, back, 1 teaspoonful abdomen, 2 teaspoonful
लेफ्ट हैंड राइट हैंड अगर हमने फुल बॉडी को कवर करना है तो मिनिमम 9 टीस्पून फुल इज इक्वल टू 45 ml सनस्क्रीन लगाने का है। और अगर हाइब्रिड सनस्क्रीन है तो मिनिमम 30 मिनट बिफोर एप्लीकेशन करना है, अच्छी तरह से उसको रब करना है। उसके बाद में आप आउटडोर एक्टिविटी में क्या अगर स्विमिंग में जाना है तो पूरा प्रोटेक्शन करेगा। बिल्कुल। तो अब हमें ये तो समझ में आ गया है कि कितना अप्लाई करना है, निकलने से कितनी देर पहले अप्लाई करना है। आपने टाइप्स ऑफ सनस्क्रीन्स भी बताए। ये भी आपसे जानना चाहेंगे, सनस्क्रीन को लेके कहा जाता है रीएप्लीकेशन भी जरूरी है, तो रीएप्लीकेशन डॉक्टर क्यों जरूरी है और कब कब रीअप्लाई करना चाहिए? वेरी नाइस। आइडियली जो सनस्क्रीन को मैंने बोला कि उसका एसपीएफ कितना है, अगर आपने 15 एसपी वाला सनस्क्रीन यूज किया तो वो अल्ट्रावायलेट बीज को 93% प्रोटेक्ट करता है। अगर 30 एसपी बड़ा यूज किया तो वो 97% प्रोटेक्ट करेगा, और 50 एसपी वाला किया तो वो 98% प्रोटेक्ट करेगा। तो अगर सनस्क्रीन का एसपीएफ कितना है उसके अकॉर्डिंगली हमें रीएप्लीकेशन करना चाहिए। 50 एसपीएफ बड़ा मिनिमम 2 to 3 आवर प्रोटेक्ट करेंगे, 30 एसपीएफ बड़ा है तो 3 to 5 आवर प्रोटेक्ट करेंगे, और मोर देन 50 एसपीएफ है तो 5 to 6 आवर एप्लीकेशन करेंगे। बट मैंने बोला उसी तरह से प्रॉपर एप्लीकेशन किया होगा और अमाउंट भी प्रॉपर होगा, तो अगर हम 2 to 3 आवर के बाद रिपीट करेंगे तो उसका इफेक्ट रहेगा। दूसरी चीज है हम कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं। अगर कोई स्पोर्ट्समैन है, बच्चा कोई क्रिकेट खेलने के लिए जा रहा है, उसको स्वेटिंग ज्यादा हो रहा है और हम वाइप आउट कर देंगे सनस्क्रीन, तो उसमें मिनिमम 3 to 4 आवर में हमें रीएप्लीकेशन करना है। हाउसवाइफ है, इंडोर मेरा जैसा कोई डॉक्टर है और कॉर्पोरेट वर्कर है जिसको बाहर सन में नहीं जाना है, तो मिनिमम दिन में 2 to 3 टाइम्स यूज करना है। जिसको आउटडोर एक्टिविटी है और किसी को विटिलिगो है, किसी को सोरियासिस है और कोई सन एग्रेवेटिंग डिजीज है, तो इसको मिनिमम 5 to 6 टाइम्स पर डे रीएप्लीकेशन करना है। बिल्कुल। तो एप्लीकेशन कितना अमाउंट हम अप्लाई करते हैं और री एप्लीकेशन, ये सब बहुत जरूरी है। और जैसा कि डॉक्टर आपने कहा 67% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज स्टिल नॉट यूजिंग सनस्क्रीन एज अ रेगुलर थिंग, वेयर पीपल आर यूजिंग इट रेगुलरली और रिलीजियसली। ऐसा नहीं हो रहा है बहुत बड़े पॉपुलेशन पे। तो ऐसे में कई बार लोग अलग अलग तरह के रीजंस रखते हैं, अलग अलग कंप्लेंट्स उनकी रहती है सनस्क्रीन को लेके। एक व्हाइट कास्ट का जिक्र आपने किया, कई लोग कहते हैं ये व्हाइट कास्ट हमें पसंद नहीं है, कई कहते हैं हम सनस्क्रीन लगाते हैं तो बहुत ज्यादा स्किन स्वेट करती है, हमारा स्किन बहुत डल लगता है, चेहरा बहुत डल लगता है, या कई एक्ने प्रोन स्किन जिनकी होती है या एक्ने हो रहे हैं वो कहते हैं कि ऑलरेडी एक्ने है, इनके ऊपर हम कैसे सनस्क्रीन लगाएं। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग तरह की बातें हैं, आप इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए पहले तो मैं बोलूंगा कि वो सनस्क्रीन अगर आपको यूज करना है तो डायरेक्ट को पार्लर में जाके या फिर मेडिकल स्टोर में जाके डायरेक्ट उसको खरीदना नहीं है। कोई क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाने का है, अपनी स्किन कैसी है, स्किन टाइप कैसा है। अगर उसकी स्किन जो ऑयली है तो हमें जेल बेस्ड सनस्क्रीन यूज करना है। अगर उसकी स्किन ड्राई है तो सनस्क्रीन के साथ मॉइस्चराइजिंग आएगा, हाइड्रोनिक एसिड है, प्रोपिलीन ग्लाइकोल है, वो यूज करना है। अगर कोई ओल्ड एज के लिए सनस्क्रीन चाहिए तो उसके साथ में एंटी एजिंग कंपोनेंट है वो यूज करना चाहिए। किसी को स्वेटिंग है, हेयरी बॉडी है, और तो उसके लिए लोशन फॉर्म, स्प्रे फॉर्म में भी सनस्क्रीन आता है। लिप्स के लिए लगाने का है तो लिप्स के लिए अलग सनस्क्रीन आता है। तो हमारे स्किन कैसी है उसके अकॉर्डिंगली सनस्क्रीन यूज करना चाहिए। और आपने बोला कि सनस्क्रीन में किसी किसी को व्हाइट कास्टिंग का प्रॉब्लम है, अगर हमने जो प्रेगनेंसी में यूज करना है और लैक्टेशन में यूज करना है तो जो केमिकल सनस्क्रीन है वो इसमें से पेडीमेट आएगा, ऑक्टालमिथोक्सीसाइनामेट आएगा, यूवीए ब्लॉकर में ऑक्सीबेंजोन आएगा, एओबेंजोन आएगा, वो हमारा इम्यूनिटी फ्लूइड में सिक्रेशन होता है तो बच्चे को साइड इफेक्ट करेगा। और लैक्टेशन में अगर यूज करना है तो अभी वो ब्रेस्ट मिल्क में सिक्रेशन होता है, तो उस कंडीशन में हमें फिजिकल सनस्क्रीन ही कंपलसरी यूज करना है। अगर बच्चे को यूज करना है तो उसके लिए अपन यूएस एफडीए अप्रूव्ड इंडिकेशन है कि मोर देन 2 ईयर में सनस्क्रीन यूज करना है, लेकिन 6 मंथ के पहले हम यूज कर सकते हैं। इसमें भी हमें केमिकल सनस्क्रीन नहीं यूज करना है, फिजिकल ब्लॉकर ही यूज करना है। तो वो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट सजेस्ट करेगा कि कौन सा सनस्क्रीन करना है और कौन से टाइप का लोशन है, जेल है, स्प्रे है, क्रीम है, वो डर्मेटोलॉजिस्ट का आपकी स्किन का टाइप देख के बताएंगे। बिल्कुल। ये आपने बहुत अच्छा बताया, चाहे वो प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन के लिए हो या चिल्ड्रन के लिए हो। एक सवाल भी है, स्वाति हमारी व्यूअर है, वो ये उनका ये सवाल है भी कि कैन सनस्क्रीन बी यूज्ड ऑन इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन एंड इफ सो आर देयर एनी स्पेसिफिक गाइडलाइंस टू फॉलो। तो आपने कहा कि 6 मंथ से ऊपर सनस्क्रीन यूज किया जा सकता है और 2 साल के बाद भी गाइडलाइंस है कि वो करते हैं। फिजिकल सनस्क्रीन क्या बच्चों के लिए भी बेटर रहता है डॉक्टर? यस यस 110%। अगर हम कैलामाइन सनस्क्रीन है, जो सनस्क्रीन के अंदर जिंक ऑक्साइड आएगा, आयरन ऑक्साइड आएगा, तो टिटेनियम डाइऑक्साइड आएगा, वो बिल्कुल पीडियाट्रिक में सेफ है।
अगर 6 मंथ्स के बिलो चाइल्ड टोडलर्स को यूज करना है तो उसके लिए आप क्लोथ ऐसा सिलेक्ट करना है, उस पर एक है कि अल्ट्रावायोलेटिक प्रोटेक्टिंग फैक्टर यूपीएफ करके आएगा, वो आपको देखना है। आप कपड़े खरीदने के लिए जा रहे हैं तो उसमें भी एक यूपीएफ का फैक्टर आएगा, वो मिनिमम 50+ होना चाहिए। तो वो भी अल्ट्रावायलेट ए और अल्ट्रावायलेट बी दोनों को प्रोटेक्ट करेंगे। और 50 यूपीएफ वाले आप क्लोथिस बच्चे के लिए खरीदेंगे तो वो 98% प्रोटेक्ट करेंगे, और ओनली 2% फैब्रिक है वही उसको एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, बाकी 98% प्रोटेक्ट करेंगे। तो लेस देन 6 मंथ के लिए आपको क्लोथिस ऐसा सिलेक्ट करने का है। मोर देन 6 मंथ आपको यूज करना है तो मैंने बोला वो वाला कोई विदाउट केमिकल फिजिकल ब्लोकर सनस्क्रीन सेफली यूज कर सकते हो। ये भी आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिविया शेयर किया कि बच्चों के कपड़े भी जो हैं वो भी सन प्रोटेक्टेड आते हैं, तो वो भी हमें रेटिंग चेक कर लेना चाहिए। Yes, अच्छा, ये तो absolutely. बच्चों की बात रही। अगर हम बाकी सभी लोगों की बात करें, कई लोग सनस्क्रीन का यूज तो करते ही हैं, लेकिन उसके अलावा फिजिकल बैरियर्स जो होते हैं या सन प्रोटेक्टर्स होते हैं, चाहे वो एक ब्रॉड ब्रिम हैट हो, Yes. सनग्लासेस हो, स्कार्फ्स हो, अम्ब्रेला हो, ये कितने कारगर होते हैं? क्या इनको भी एड ऑन की तरह यूज किया जा सकता है? उसके बारे में फर्स्ट में बताऊंगा तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो Right. फर्स्ट ऑफ ऑल इन समर के सीजन में 10 AM टू अप टू 3 to 4 AM तक मैक्सिमम रेज होते हैं, तो उस टाइम पे पॉसिबल है तो आउटसाइड जाना ही नहीं। तो पहली चीज हुई कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सेकंड चीज, फॉरएवर અને नो सीजन विदाउट सनस्क्रीन नहीं जाना है तो सनस्क्रीन इज मस्ट। थर्ड चीज आपने बोला कि फिजिकल के आप अपने हिसाब से क्या केयर कर सकते हैं, तो उसके लिए आपने बोला कि कैप पहन के भी आप जा सकते हैं, उसमें ब्रॉड ब्रिम कैप। तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा जो आपकी जो कैप की ब्रिम साइज है मिनिमम 10 से 20 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। अगर 10 सेंटीमीटर तक रहेगी तो पूरा आपको चिन तक कवर करेगा, और 20 सेंटीमीटर तक रहेगा तो आपको नेक को भी कवर करेगी। फोर्थ चीज हुआ कि आप अगर आउटसाइड जाना है तो आप ब्लैक अम्ब्रेला भी यूज कर सकते हैं, तो उसको भी सन को प्रोटेक्शन करेंगे। फिफ्थ चीज मैं बताऊंगा तो आपका क्लोथिस भी ऐसा सिलेक्ट करना। अगर आपने थिन क्लोथिस फैब्रिक सिलेक्ट किया या फिर ट्रांसपेरेंट सिलेक्ट किया तो उसमें भी रेस का थोड़ा पेनिट्रेशन ज्यादा रहेगा। अगर पॉसिबल है आउटसाइड जाना है तो स्लीवलेस कपड़े से बेटर है कि फुल स्लीव के कपड़े या फिर एप्रन है या स्कार्फ है वो कवर करेंगे तो प्रोटेक्शन आपको ज्यादा मिलेगा। बट सनस्क्रीन इज मस्ट। बिल्कुल, एड ऑन एड ऑन हम कर थेरेपी सकते हैं एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन सनस्क्रीन तो सबसे ज्यादा जरूरी है ही। सनस्क्रीन हाँ। में एक और कंफ्यूजन जो आम लोगों को होता है डॉक्टर, और बहुत बार होता है, वो ये कि किस सीक्वेंस पे हम सनस्क्रीन यूज करें। हम सब जानते हैं कि पहले हमें अपनी स्किन को क्लिंजिंग करना चाहिए, मॉइस्चराइज करना भी जरूरी है, सनस्क्रीन भी जरूरी है, कई लोगों को मेकअप भी अप्लाई करना होता है, करना पड़ता है। तो ऐसे में सीक्वेंसिंग क्या हो, सनस्क्रीन कहाँ लगाएं? बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन। हमारे पास काफी पेशेंट ओपीडी में आते हैं तो पूछते हैं कैसे यूज करना चाहिए, तो उसके बारे में मैं आपको एक फॉर्मूला दूंगा, CTMS, सी फॉर क्लिंजिंग। अगर हमें सबसे पहला करना तो क्लिंजिंग करना चाहिए, तो क्लिंजिंग भी लोशन आपको स्किन के अकॉर्डिंगली डॉक्टर जैसा सिलेक्ट किया कि लिक्विड पैराफिन वाला है या फिर स्टेराइल अल्कोहल है, सीटल अल्कोहल, जिसकी पीएच नॉर्मल होनी चाहिए। अगर समर में भी और विंटर में, अगर समर में आपको ऑयली ज्यादा स्किन है तो भी स्किन को ड्राई करेगा, और विंटर में ड्राई स्किन है तो उसको ऑयली करेगा। तो न्यूट्रल पीएच वाला क्लिंजिंग लोशन से पहले क्लीन करना चाहिए। Nowadays newer one concept is in night time we should use double cleansing lotion. फर्स्ट नॉर्मल क्लींजिंग लोशन एंड सेकंड अगर हमने मेकअप किया सनस्क्रीन लगाया तो क्लीन करने के लिए फेस वॉश भी एडन थेरेपी में यूज कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्लींजिंग लोशन इज मस्ट। सेकंड इज टी फॉर द टोनर, उसमें एस्ट्रिंजेंट आता है और वो अल्कोहल बेस भी होता है, तो कभी कभी जिसको सेंसिटिव स्किन है, एटोपिक स्किन है, ड्राई स्किन है, उसको यूज नहीं करना चाहिए, बाकी टोनर यूज करना चाहिए। अगर हम रेगुलर देखेंगे तो जो रोज वाटर आता है, गुलाब जड़, ये वन टाइप ऑफ टोनर ही है। Nowadays some are using फेस वॉश इंस्टेड ऑफ क्लींजिंग लोशन, तो टोनर को हम स्किप कर सकते हैं, क्योंकि फेस वॉश में भी टी ट्रियोल आता है, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी के जैसा काम करता है, और किसी किसी को एक्ने प्रोन स्किन है तो ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड होएगा, तो टोनर की जरूरत नहीं अगर फेस वॉश यूज कर रहे हैं तो। थर्ड वन इज द मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर का रोल बहुत बढ़िया है, वो भी अपनी स्किन कैसे है उसके हिसाब से हमने ऑक्लूसिव मॉइस्चराइजर यूज करना है, इमोलिएंट करना है, हाइड्रोफिलिक मॉइस्चराइजर यूज करना है, डर्मेटोलॉजिस्ट आपको दिखाएंगे, बताएंगा। लेकिन जिसको ऑयली स्किन है उसको भी मॉइस्चराइजर तो लगाने का ही है। उसके बाद आएगा सनस्क्रीन का रोल, तो क्लींजिंग, टोनर, मॉइस्चराइजर एंड लास्ट में सनस्क्रीन यूज करना है। और आपने बोला अगर किसी को मेकअप करना है तो मेकअप के लिए वो प्राइमर यूज करते हैं, तो प्राइमर के बाद आपको सनस्क्रीन ऐड कर सकते हैं। और किसी किसी को अनइवन स्किन टोन है तो
वो फाउंडेशन यूज करते हैं, कंसीलर यूज कर रहे हैं, तो उसके बाद में भी आप सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं डेफिनेटली। ओके, तो एक तरह से सनस्क्रीन हमारे स्किन का जैकेट है, जिस तरह से यस, कपड़ों के वन सबसे टाइप ऑफ ऊपर हम जैकेट। जैकेट वेयर करते हैं, वैसे ही हमारे स्किन में सबसे ऊपर लेयर जो है सनस्क्रीन की होती है, जो हमें सन डैमेज से या दूसरे जो स्क्रीन या दूसरी लाइट से एमिट होने वाले रेडिएशंस हैं, उनसे एब्सोल्युटली। हमारी रक्षा करता है। कुछ और सवाल मैं हमारे व्यूअर्स के लिए लेती हूँ। कार्तिक है, पूछ रहे हैं, हाउ ऑफन शुड आई रीअप्लाई सनस्क्रीन, स्पेशली इफ आई एम स्वेटिंग और स्विमिंग? यस, वेरी नाइस। हमने पहले बताया कि अगर आपकी सनस्क्रीन कौन से एसपीएफ पर यूज कर ले, उसके हिसाब से मिनिमम 2 to 3 के 4 आवर हम रीअप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन उसने बोला कि अगर स्वेटिंग ज्यादा हो रही है तो एक नया फॉर्मूला है कि स्वेट रेजिस्टेंट, और दूसरा है कि उसके साथ मैं आप बताऊंगा कि वाटर रेजिस्टेंट। तो स्वेट रेजिस्टेंट और वाटर रेजिस्टेंट सनस्क्रीन भी आप देखेंगे तो इसके बॉक्स के अंदर लिखा हुआ होगा है, तो उसका इंडिकेशन ऐसा है जिसको हायर स्वेटिंग हो रहा है तो वो सनस्क्रीन मिनिमम आपको 40 मिनट तक प्रोटेक्ट करेगा। हमने सनस्क्रीन लगाया, हाई स्वेटिंग है, अगर हम वाटर पार्क में जा रहे हैं, इंडोर वाटर यूज कर रहे हैं, तो वो वाटर रेजिस्टेंट सनस्क्रीन है और स्वेट रेजिस्टेंट सनस्क्रीन है, तो वो 40 मिनट तक प्रोटेक्ट करेगा। दूसरा एक फॉर्मूला ऐसा है कि वेरी वाटर रेजिस्टेंट, पहले इसको बोल रहे थे कि वाटर प्रूफ सनस्क्रीन, तो वो सनस्क्रीन ऐसा है कि वो 80 मिनट तक प्रोटेक्ट करेगा। तो अगर आपको 80 मिनट के बाद उसको रीअप्लाई करना है। बिल्कुल। तो बहुत ज्यादा स्वेटिंग की प्रॉब्लम है या स्विमिंग जो करते हैं खास तौर पे, उनके लिए ये अच्छे विकल्प हो सकते हैं। जनिका हमारे साथ है। जनिका का सवाल है, शुड आई अप्लाई सनस्क्रीन इवन ऑन क्लाउडी और ओवरकास्ट डेज? ये भी एक बहुत कॉमन मिथ है। यस यस, हम सभी लोग को ऐसा है, कभी हम पेशेंट को भी बोलते हैं कि सर बाहर तो धूप ही नहीं है, हमारा रेनी सीजन है, लेकिन क्लाउडी एटमॉस्फेयर में सनस्क्रीन का रोल तो बहुत बड़ा है कि उस टाइम पे रेडिएशन ज्यादा होता है और स्किन टैनिंग भी ज्यादा होता है। तो क्लाउडी एटमॉस्फेयर में यू मस्ट हैव टू यूज सनस्क्रीन। अनदर थिंग, समटाइम्स वी आर गोइंग फॉर माउंटेन और हाई क्लाइमेट, तो उस टाइम पे वी आर मोर क्लोजर टू सन, तो उस टाइम पे भी हाई एसपीएफ वाला सनस्क्रीन यूज करना चाहिए। एंड थर्ड चीज, अगर हम आउटसाइड वेकेशन में भी, उस समर के सीजन है, सभी लोग हमारे पास आते हैं सर बीच पे जाना है, तो उस टाइम पे रिफ्लेक्शन ज्यादा होता है तो वो मोर डैमेज करेगा स्किन को, उसमें टैनिंग भी ज्यादा होगा और बर्निंग भी ज्यादा होगा। तो अगर माउंटेन में जाना है, क्लाउडी एटमॉस्फेयर है, रेनी एटमॉस्फेयर है और बीच पे जाना है, तो उस टाइम पे हाई एसपीएफ मोर देन 50 एसपीएफ पड़ा और वाटर रेजिस्टेंट सनस्क्रीन कंपलसरी यूज करना है। बिल्कुल। बीच वेकेशन पे जाते हैं तब तो फिर भी ध्यान होता है कि सनस्क्रीन लेके जाना है, लेकिन अपहिल माउंटेन्स पे जाते हैं तो हमें लगता है वहां तो वेदर कूल है या फिर स्नोफॉल हो रहा है, हम तो बर्फ देखने जा रहे हैं, वहां पे सनस्क्रीन की क्या जरूरत है। लेकिन जैसा कि आपने कहा, वहां पे बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं सनबर्न के, या सन हमारे बहुत क्लोज होता है तो एक्सपोजर बहुत यस। ज्यादा होता है। बिल्कुल, तो इसका भी ध्यान रखना है। हमारे साथ टीना भार्गव हैं। उनका सवाल है, आर देयर एनी पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स और एलर्जिक रिएक्शंस एसोसिएटेड विद सनस्क्रीन यूज? यस डेफिनेटली, सम सनस्क्रीन आर एलर्जिक, जिसको सेंसिटिव स्किन है तो उसके अगर हम अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी ब्लोकर वाला यूज करेंगे तो इसमें थोड़ा एलर्जिक रेसिस होगा, तो उसके लिए फिजिकल ब्लोकर सनस्क्रीन यूज करना है। और सनस्क्रीन अगर हम आइज में जाएगा, अगर वाटर पार्क में गया तो उसके स्किन में थोड़ा रेडनेस आएगा, एलर्जिक डर्मेटाइटिस होगा, और किसी किसी को सनस्क्रीन की सेंसिटिविटी भी होती है। और जिसको ऑयली स्किन है और एक्ने प्रोन स्किन है, उसमें अगर हम मॉइस्चराइजर वाला सनस्क्रीन यूज करेंगे, नॉन कमोडाइजेशन सनस्क्रीन नहीं यूज किया, तो उससे थोड़ा ब्रेकआउट भी बढ़ जाएगा और पिंपल्स भी निकलेगा। तो यह फोटो एलर्जिक रिएक्शन है, डर्मेटाइटिस है, एक्ने है, पिंपल्स है, वो फ्यू आर सम साइड इफेक्ट ड्यू टू द सनस्क्रीन। बट अगर हम डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएंगे, अगर वो आपकी स्किन देख के बताएंगे तो उसमें कुछ साइड इफेक्ट नहीं होगी। बिल्कुल, तो इसीलिए बार-बार हम कह रहे हैं, और ये सेशन करने का एक बड़ा उद्देश्य ये भी है कि हम आपको ये बताएं कि सनस्क्रीन क्यों जरूरी है, क्यों उसे रेगुलरली रिलीजियसली यूज करना है, और क्यों सही सनस्क्रीन चुनना बहुत जरूरी है। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाए, क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाए। डॉक्टर, आज के समय में इतने सारे क्वैक्स है, पार्लर्स है, ओवर दी काउंटर प्रोडक्ट्स है, इन्फ्लुएंसर्स हैं सोशल मीडिया पे, इंफॉर्मेशन की भरमार है, ऐसे में लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स हैं, साथ ही साथ जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं वो तो अलग है ही, और मार्केट उनसे भरा हुआ है, इतने सारे एडवर्टीजमेंट्स हैं सबके।
तो many times we fall prey to the market gimmick, you know. तो ऐसे में कैसे हम ट्रस्ट करें कि जो सनस्क्रीन, एक तो ऑप्शन आपने बताया कि हम एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से मिले, वो हमें बताएंगे हमारे स्किन के हिसाब से, हमारे दूसरी चीजों का ध्यान में रखते हुए बेस्ट सनस्क्रीन क्या हो सकता है। अगर डर्मैट से नहीं मिल पा रहे हैं, बहुत सारी वजह होती है और हमको खुद ही जाके एक सनस्क्रीन लेना है, तो भी हम किन बातों का ध्यान रख सकते हैं? क्या एक मेडिकेटेड सनस्क्रीन लेना बेटर होगा, सेफ होगा, क्या करना चाहिए? अब सबसे पहले तो मैंने बोला कि वो डर्मेटोलॉजिस्ट को अगर नहीं दिखाना है, डायरेक्ट मेडिकल स्टोर में जाना है, तो जो सनस्क्रीन सिलेक्ट करे इसमें हमें कॉम्बिनेशन और हाइब्रिड सनस्क्रीन यूज करना है। तो इसमें मैंने बोला वो जिंक ऑक्साइड होना चाहिए, या आयरन ऑक्साइड होना चाहिए, या टिटेनियम डाइऑक्साइड कंटेंट होना चाहिए। दूसरा, अल्ट्रावायलेट एयर प्रोडक्शन के लिए ऑक्सीबेंजन के एवोबेंजन कॉमनली यूज करते हैं, वो एक वन में से कोई भी एक चीज होना चाहिए। तीसरा है ऑक्टाल मिथॉक्सीसाइनामेट के पेडीमेट के अल्ट्रावायलेट बी ब्लॉकर। तो कॉम्बिनेशन हाइब्रिड सनस्क्रीन फर्स्ट होना चाहिए। उसका एसपीएफ भी देखना चाहिए, वो मोर देन 30 एसपीएफ होना चाहिए। तीसरी चीज, उसका पीए स्टार रेटिंग मिनिमम 3 स्टार या 4 स्टार होना चाहिए। फोर्थ चीज, जो कंपनी आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड कंपनी होनी चाहिए और यूएस एफडीए अप्रूव्ड होना चाहिए, तो वो सबसे बेटर है। ओके, तो बिल्कुल इन बातों का हम ध्यान रख सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा ऑप्शन यही है कि हम एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाए, क्योंकि सबसे लंबे समय तक हमें सनस्क्रीन यूज करना है, सबसे ज्यादा हमें सनस्क्रीन यूज करना है, क्योंकि रीएप्लीकेशन भी बहुत जरूरी है, हमने समझ लिया है ये। तो ऐसे में सनस्क्रीन बिल्कुल हमारे हिसाब से हो, ये बहुत जरूरी है। चूंकि सनस्क्रीन, जैसा कि मैंने कहा डॉक्टर, सबसे लंबे समय तक हमें यूज करना है, सबसे ज्यादा हमें यूज करना है, एक तरीके से देखें तो और कैलकुलेट करें तो मुझे लगता है सनस्क्रीन ही एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारी स्किन पे सबसे ज्यादा बार लगने वाला है। Yes. ऐसे में कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि ये सेफ है ना, कि टॉक्सिक तो नहीं है? अगर लंबे समय तक हम सही सनस्क्रीन मान लीजिए हमें मिल गया और लंबे समय तक हम इसका यूज करें, तो इज इट सेफ? यस, 110% सेफ। क्योंकि अगर हम रेगुलर सनस्क्रीन यूज करेंगे, अभी सभी लोग को क्या गोरा ही देखना है, सभी लोग को फेसबुक में, इंस्टा में, सेल्फी में अच्छा ही दिखना है, मुझे भी यंग दिखना ही है। तो अगर रेगुलर हम सनस्क्रीन यूज करेंगे तो फेस पे किसी को फ्रेकल है, लेंटिजन है और रिंकल है और प्रीमेच्योर एजिंग को प्रिवेंट कर लेंगे। तो एक यंग देखने के लिए, ग्लैमरस देखने के लिए, गॉर्जियस देखने के लिए सनस्क्रीन तो जरूरी है। अगर आपकी स्किन पर वो शूट हो गया तो डेफिनेटली कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कभी एज के हिसाब से कोई स्किन में चेंजेस आया, हमारी स्किन थोड़ी ड्राई हो गई, तो आपको कुछ कंप्लेन होगी, कुछ स्किन में एलर्जिक रिएक्शन आएगा या फिर किसी किसी को पिंपल्स के साथ कुछ निकलेगा, उस टाइम पे आपको थोड़ा स्किप करना है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल। और जैसा कि आपने कहा, ग्रेसफुली एज भी हम कर सकते हैं सनस्क्रीन के साथ। कई लोग सनस्क्रीन को एंटी एजिंग प्रोडक्ट के तौर पे भी देखते हैं डॉक्टर, तो कैसे ये हमारे लिए एक एंटी एजिंग प्रोडक्ट भी हो सकता है? क्योंकि मैंने बोला कि स्टार्टिंग में जो हमारा जो अल्ट्रावायलेट बी है, तो उसकी वेवलेंथ है अल्ट्रावायलेट सी के 290 टू 320 है, 320 टू 340 तक अल्ट्रावायलेट बी की वेवलेंथ है, वो डीप में पेनिट्रेट नहीं करेगा। अगर अल्ट्रावायलेट ए अगर लॉन्ग टाइम तक हमारा स्किन में आएगा, उसको 320 टू 400 नैनोमीटर वेवलेंथ है, तो स्किन में प्रीमेच्योर एजिंग होगा और साथ में स्किन में रिंकल भी दिखेगी। अगर रेगुलर अगर हम सनस्क्रीन घर पे भी यूज करेंगे तो अल्ट्रावायलेट ए का पेनिट्रेशन वेरी लेस होगा, तो स्किन में एजिंग भी बहुत लंबे टाइम पे आएगा या भी आएगा भी नहीं। और दूसरी चीज है, किसी किसी को अगर बाहर जाना है और किसी किसी को वर्क ऐसा है, तो उसके लिए न्यूअर ओरल सनस्क्रीन भी आता है। इसमें विटामिन सी आएगा, विटामिन ए आएगा, बीटा कैरोटीन आएगा, अल्फा टोकोफेरॉल आएगा। दूसरा, भी मार्केट में पॉलीपोडियम लिकोटिम्स की टेबलेट भी आती है, उसको ओरल सनस्क्रीन बोलते हैं। अगर जिसको वर्क ऐसा है कि फार्मर है अथवा दूसरा उसकी जॉब ऐसी है, तो ओरल टेबलेट लेके भी वो जा सकते हैं, तो ओरल सनस्क्रीन का भी काम करेगा और एज एंटी एजिंग भी वो काम करेगा। बिल्कुल, कई ऐसे एथलीट्स होते हैं जिनको अंडर द सन दौड़ना है, या यस, स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, या जैसा आपने जिक्र किया फार्मर्स हैं, ड्राइवर्स हैं, बहुत लंबे लंबे समय के लिए वो ड्राइव कर रहे हैं, फील्ड में जो लोग काम करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको शायद ये ओरल सनस्क्रीन जिसका आपने यस। जिक्र किया वो उनके लिए बेनिफिशियल होगा। लेकिन उन सबके लिए व्यूअर्स, आपको जाना होगा एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, वो आपको सही सलाह देंगे। अब डॉक्टर, शुरू में भी हमने बात की थी, एक बार फिर इस टॉपिक पे आना चाहूंगी कि कई लोग कहते हैं कि मैं तो वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, या मैं तो कोई काम ही नहीं कर रही हूँ। अगर आप कह रहे हो कि लैपटॉप से या स्क्रीन से जो रेडिएशंस निकलते हैं वो भी हार्मफुल हो सकते हैं, मैं तो किचन में मोस्टली काम करती हूँ, किचन के बाहर मेरा है ही नहीं, तो मुझे सनस्क्रीन की जरूरत क्यों है? और या मैं अगर जा भी रहा हूँ तो मैं सिर्फ घर से ऑफिस जा रहा हूँ, एयर कंडीशन कार में जा रहा हूँ, तो सन का एक्सपोजर तो बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं सनस्क्रीन क्यों यूज कर रहा हूँ? हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि हम अगर घर पे है, हाउस वाइफ है, उसको विंडो में से भी लाइट करे जाएगा। अगर हमने सन प्रूफ
प्रोटेक्शन फिल्म लगाई, लेकिन वो अल्ट्रावायलेट ए को प्रोटेक्ट नहीं करेगी। तो अल्ट्रावायलेट तो ए डेफिनेटली आएगा। दूसरा, अगर घर में हम कोई मिक्सर यूज कर रहे हैं, चिमनी यूज कर रहे हैं, और टीवी यूज कर रहे हैं, और लैपटॉप यूज कर रहे हैं, और कोई भी गैजेट्स यूज कर रहे हैं, तो वो उसमें से ब्लू लाइट आती है, उसकी वेवलेंथ है 470 नैनोमीटर। वो कंटिन्यूसली अगर जब एक्सपोजर में आएगा तो अभी वो स्किन को डैमेज करेगी। अगर आपको उससे बचना है तो सनस्क्रीन कंपलसरी यूज करना है। अगर आप कार की गाड़ी में आप जा रहे हैं, उसमें भी ग्लास में से रेस तो आएगा ही, लेकिन उसके लिए जो अगर हमने जो फिल्म लगाया है तो यूवीबी को प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन यूवीए को नहीं प्रोटेक्ट करेगा। तो वो प्रिवेंशन के लिए हमें कंपलसरी सनस्क्रीन यूज करना है। और कई लोग ये कहते हैं, भले ही वो फील्ड पे काम कर रहे हो या ऑफिस में काम कर रहे हो, कि हम एक बार लगा के घर से निकल जाए सनस्क्रीन, वो तो फिर भी हम अफोर्ड कर सकते हैं, फीजिबल है, लेकिन रीएप्लीकेशन नहीं हो पाता क्योंकि फेस वॉश करने का टाइम नहीं मिल पाता। तो ऐसे में रीएप्लीकेशन कैसे करें? सनस्क्रीन चीज मैडम एक ऐसी है कि उसमें अगर हमें फेस वॉश की जरूरत भी नहीं है, अगर हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, हम पेशेंट देख रहे हैं, फेस वॉश का टाइम नहीं है, तो आप 2 या 3 घंटे के बाद रीएप्लीकेशन विदाउट फेस वॉश भी कर सकते हैं। देयर इज नो एनी प्रॉब्लम, देयर इज नो एनी हार्म, बट यू कैन डेफिनेटली यूज सनस्क्रीन आफ्टर 2 to 3 आवर्स विदाउट फेस वॉश। अरे वाह! ये आपने एक बहुत काम की चीज़ बताई। मुझे लगता है बहुत से हमारे व्यूअर्स को नहीं पता होगा कि हम बिना फेस वॉश के भी यस। सनस्क्रीन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एक छोटा-सा ट्यूब हमारे पास हमारे पॉकेट में, बैग में, पर्स में रखिए और जैसे ही 2-3 घंटे हो जाए उसे री-अप्लाई कीजिए। इंडियन सोसाइटी में बहुत सारी पिगमेंटरी इश्यूज़ की प्रॉब्लम्स भी होती है, हाइपर पिगमेंटेशन होता है, मेलास्मा होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। वुमेन में भी खास तौर पे मेलास्मा, हाइपर पिगमेंटरी इश्यूज़ हमको देखने को मिलते हैं डॉक्टर। क्या इनमें प्रिवेंशन के तौर पे हम सनस्क्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं? मान लीजिए कोई फैमिली हिस्ट्री है मेरे घर में मेलास्मा की, तो क्या मैं सनस्क्रीन का यूज़ करना शुरू कर सकती हूँ एज़ अ प्रिवेंटिव मेजर? यस डेफिनेटली। अगर कोई भी आपने बोला कि किसी को हाइपर पिगमेंटेशन फैमिली हिस्ट्री में है, अगर मेलास्मा है, कि प्रेगनेंसी के बाद अगर मेलास्मा है, तो हमारे पास कोई भी पेशेंट है तो हम पहले क्या करता है कि डिजीज को प्रिवेंट करते हैं। तो फर्स्ट वी शुड स्टॉप द डिजीज प्रोग्रेशन, देन वी कैन क्योर द डिजीज। अगर मेलास्मा है तो उसको प्रिवेंशन के लिए सनस्क्रीन तो कंपलसरी है, उसके साथ में हम डीप पिगमेंटिंग क्रीम भी देते हैं, किसी किसी को केमिकल पीलिंग भी करते हैं, और किसी किसी को क्यू लेजर भी करते हैं। अगर उससे हमारा पिगमेंटेशन चला गया तो उसका बाद वापस ना आए, उसके लिए भी सनस्क्रीन कंपलसरी है। तो जिसको फैमिली हिस्ट्री है इसको तो डेफिनेटली प्रिवेंशन के लिए यूज करना चाहिए, और अगर उसको डिजीज है और क्योर हो गए तो वापस ना आए, उसके लिए भी वो सनस्क्रीन कंपलसरी यूज करना चाहिए। मतलब हम एक तरह से प्रिकॉशनरी मेजर के रूप में भी सनस्क्रीन यूज कर रहे हैं और ट्रीटमेंट और के लिए भी प्रिवेंशन के लिए सनस्क्रीन का भी। इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसी एक्ने में होता है, एक्ने तो कई बार चला जाता है, ट्रीटमेंट हो जाता है, लेकिन वो जो एक्ने पिगमेंटरी डिसऑर्डर छोड़ के जाता है, पिगमेंटेशन छोड़ के जाता है, स्कार्स छोड़ के जाता है, उनको ट्रीट करना ऐसा लगता है एक्ने को ट्रीट करने से भी ज्यादा मुश्किल है और ज्यादातर लोग उससे ज्यादा परेशान रहते हैं। तो क्या एक्ने के केस में भी हमको यूजफुल हो सकता है सनस्क्रीन? हाँ डेफिनेटली, क्योंकि आपने बोला कि अगर एक्ने चले गए उसके बाद में पिगमेंटेशन हुआ, उसका स्कार है, तो उसके लिए हम कोई भी अगर क्रीम ट्रेटिनोन यूज करेंगे, जेलिक एसिड यूज करेंगे, ग्लाइकोलिक एसिड यूज करेंगे, लैक्टिक एसिड यूज करेंगे, तो उससे थोड़ा स्किन में रेडनेस आएगा और एरिथेमा भी होगा। और सेकेंडरी अगर हमने केमिकल पिलिंग कोई भी किया, येलो पिलिंग किया, ग्लाइकोलिक एसिड वाला पिलिंग किया, तो पिलिंग से हमारा स्किन का एक्सफोलिएशन होगा। वो स्किन अगर एक्सफोलिएशन होगा उसके बाद में अगर हम सन रेज में जाएगी या घर में भी लाइट होगी तो स्किन में थोड़ा रेडनेस भी होगा। तो प्रिवेंशन के लिए सनस्क्रीन कंपलसरी है, और सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे तो पेशेंट को थोड़ा रेडनेस बढ़ जाएगा और रिवर्सिबल उसको पिगमेंटेशन होगा। तो एक्ने पिगमेंटेशन के लिए हम जो भी क्रीम यूज कर रहे हैं या कोई भी प्रोसीजर या लेजर यूज कर रहे हैं, तो उसकी साइड इफेक्ट ना हुए और पिगमेंटेशन उसका इंप्रूवमेंट हुए, उसके लिए कंपलसरी सनस्क्रीन साथ में देना ही है। एक्ने जब होता है, इससे पहले भी हमने इस पे बात की थी और इस पे बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई लोगों के साथ ये समस्या है कि हमको एक्ने होता है तो हम उसके ऊपर एक तो सबसे पहले ओवर द काउंटर मेडिकेशन करते हैं जो कि बहुत गलत है। उसके ऊपर सनस्क्रीन तो हम बिल्कुल भी नहीं लगाना पसंद करते हैं। और कई बार तो एक्ने प्रोन स्किन या ऑयली स्किन जिनकी होती है उनको लगता है कि सनस्क्रीन हमारे लिए बने भी है या नहीं, कौन से सनस्क्रीन बेस्ट होंगे। और इसलिए मैं आपसे चाहूंगी डॉक्टर कि ये जो वेरियस स्किन टाइप्स है, एक तो डेफिनेटली हम एक क्वालिफाइड डर्मैट से जब कंसल्ट करेंगे तो वो हमें हमारी स्किन टाइप और उसके हिसाब से सनस्क्रीन हमें बताएंगे, लेकिन फिर भी एक ओवरऑल नॉलेज के लिए अलग अलग स्किन टाइप्स के लिए कौन सी सनस्क्रीन बेस्ट होती है, क्योंकि मार्केट में कई सारे फॉर्मुलेशंस में सनस्क्रीन अवेलेबल है। फर्स्ट में शॉर्ट में वो बताऊंगा, हमारा स्किन का टाइप 4 टाइप्स होता है। एक तो ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, कंबाइंड स्किन और मैच्योर स्किन। ऑयली स्किन ऐसा है कि जिसकी फैमिली हिस्ट्री है उसको ऑयली स्किन है। ड्राई स्किन उसमें थोड़ा ड्राइनेस ज्यादा रहता है। दूसरी चीज के कंबाइंड स्किन का जो टी जोन होता है, हमारा फोरहेड है,
वो हमारे जो टी जोन में ऑयली रहता है, और जो वी जोन हमारा मैंडिबुलर लाइन है वहां पे ड्राई रहता है। चौथी जो एजिंग स्किन, अपनी एज भी नहीं है फिर भी उसमें फेस में थोड़ा रिंकल लगेगा, टैनिंग लगेगा, तो वो आपको अगर चेक करना है तो बेसिक फॉर्मूला ऐसा है, अपने मिरर में आपको खड़े रहना है, मिरर में खड़े रह के अपना फोरहेड है, चीक से या चिन पे आपको 30 सेकंड 30 सेकंड तक उसको कंप्रेस करना है। उसके बाद में आपको ऑब्जर्व करना है, अगर जो कोई भी ऑयल ड्रॉपलेट अगर वहां पे आएगा तो समझना कि अपनी स्किन ऑयली है, और जो ड्राई फ्लैक्स के ऐसा कुछ लगेगा तो हम समझना कि स्किन हमारी ड्राई है। अगर 30 सेकंड के बाद अगर आपको लगेगा कुछ नहीं हुआ तो समझ लेना कि वो स्किन हमारी नॉर्मल है। दूसरा फॉर्मूला ऐसा है कि हमें प्रॉपर फेस वॉश से क्लीन करने का है। क्लीन करने के बाद 30 मिनट के बाद ऑब्जर्व करना है, अगर फेस पे जो ऑयल आएगा तो समझ लेना कि अपनी स्किन ऑयली है, और 30 मिनट्स के बाद आपको स्किन में थोड़ा ड्राइनेस लगेगा, रफ लगेगा, फ्लेकी लगेगा तो समझ लेगा अपनी स्किन ड्राई है, और 30 मिनट के बाद स्किन पहले जैसे है तो समझ लेगा अपनी स्किन नॉर्मल है। बेसिक फॉर्मूला कोई भी मिरर में देख के भी कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें अपने सिलेक्ट करना है। बिल्कुल, तो सबसे पहले तो स्किन टाइप पता करने के लिए जो दोनों आपने उपाय बताए, फॉर्मूला बताया, ये बहुत ही अच्छे हैं, इंटरेस्टिंग हैं, एंड आई एम श्योर बहुत सारे व्यूअर्स हमारे कल यही करने वाले हैं सुबह-सुबह उठ के। इसके अलावा ये जो अलग-अलग स्किन टाइप है, इसके हिसाब से कौन-सा सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए? क्योंकि मार्केट में जेल बेस्ड सनस्क्रीन है, स्प्रे सनस्क्रीन है, लोशन बेस्ड, क्रीम बेस्ड, तो स्किन टाइप्स के हिसाब से कौन-सा सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए? मैंने पहले बताया अगर अपनी स्किन ऑयली है तो हमने बिल्कुल उसका जो बेस है ना वो जेल बेस होना चाहिए या वाटर बेस होना चाहिए, तो लगाने के बाद बिल्कुल आपको ऑयलीनेस नहीं लगेगी। दूसरा जी, अगर हमारी स्किन ड्राई है तो जो सनस्क्रीन आपको क्रीम फॉर्म में होगा, क्रीम में, और उसके साथ में मॉइस्चराइजर कंपोनेंट होना चाहिए, इसमें हाइलुरोनिक एसिड है या लिक्विड पैराफिन है या प्रोपिलीन ग्लाइकोल है, वो कंटेंट वाला और क्रीम बेस में यूज करना चाहिए। और तीसरी चीज आपने बोला कि आपको स्वेटिंग ज्यादा है और हेयरी स्किन है तो उसके लिए स्प्रे फॉर्म भी आता है और लोशन फॉर्म में आता है, तो वो वाला आपको यूज करना चाहिए। तो स्किन के अकॉर्डिंगली, और आप सनस्क्रीन के बॉक्स पे देखेंगे तो पता चल जाएगा इसमें ये जेल फॉर्म है, क्रीम फॉर्म में, और अगर इसमें दूसरा एक इमल्सन फॉर्म में भी आता है या सिलिकॉन बेस भी आता है, और लगाने के बाद बिल्कुल आपको मैट फिनिश होता है, तो आपको ऑयली भी नहीं लगेगा, ड्राई भी नहीं लगेगा, और यूवीए और यूवी दोनों को प्रोटेक्ट करेगा। तो सिलिकॉन बेस वाला मैट फिनिश अभी सभी लोग काफी प्रेफर करते हैं। जी। डॉक्टर, आजकल मेकअप प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं जिनमें एसपीएफ होता है, चाहे वो फाउंडेशन हो, फेस पाउडर हो, लिपस्टिक हो, आईलाइनर हो, आई थिंक सब तरह के जो मेकअप प्रोडक्ट्स होते हैं वो एसपीएफ के साथ भी आने लगे हैं। कई बार हमारे व्यूअर्स हमसे पूछते हैं कि स्टैंड अलोन सनस्क्रीन फिर भी जरूरी है? अगर मैं मेकअप लगा के बाहर जा रही हूँ तो भी क्या जरूरी है स्टैंड अलोन सनस्क्रीन? आपने बोला कि मेकअप के फाउंडेशन है, कंसीलर है, कि उसमें आपको सनस्क्रीन, लेकिन उसका एसपीएफ इतना नहीं होगा और वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम भी नहीं होगा, तो वो आपको प्रोटेक्शन मिलेगा लेकिन मिनिमम मिलेगा। लेकिन मेरा राय ऐसा है कि आप मेकअप वाला सनस्क्रीन से ऊपर उसको एड ऑन के लिए हमें जो बोला वो मोर देन 30 एसपीएफ वाला सनस्क्रीन कंपलसरी यूज करना है, केवल मेकअप वाला सनस्क्रीन प्रोटेक्ट नहीं करेगा बिल्कुल। बिल्कुल, तो हमें अपना स्टैंड अलोन सनस्क्रीन जो हमने वो बेसिक कंपलसरी। जान लिया है कि क्या-क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, वो सनस्क्रीन यूज़ करना है। उसके ऊपर अगर हम ये एसपीएफ वाले मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, तो डेफिनिटली वो एक ऐड ऑन है, एडेड प्रोटेक्शन हमें दे रहा है, लेकिन हमारा बेसिक सनस्क्रीन तो हमें चाहिए ही चाहिए। डॉक्टर, अब वक़्त हो चला है सेशन को समेटने का, कंक्लूड करने का, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि कोई ऐसी बात जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें, कोई संदेश जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहें? हमको पता है कि स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, स्किन इज द मिरर ऑफ द इंटरनल ऑर्गन, और हेल्दी एंड ब्यूटीफुल स्किन इज द गेटवे ऑफ योर पर्सनालिटी। तो अगर हमें हेल्दी स्किन रखनी है और हमें ग्लैमरस स्किन रखनी है तो सनस्क्रीन आप जितने ज्यादा अर्ली एज में यूज करेंगे उतनी आपकी एज को भी प्रिवेंट कर लेंगे। उसके लिए मेरा वो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है, कोई भी अगर सनस्क्रीन आपको यूज करना है तो डर्मेटोलॉजिस्ट को ही प्रिफर करके यूज कीजिए, तो आपको मनी को भी आपको बचा पाएंगे और उसकी साइड इफेक्ट से भी आप बच पाएंगे। उसके लिए मैंने पहले से बोला कि उससे क्या क्या देखना है, एसपीएफ फैक्टर देखना है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम देखना है, और अपने टाइप ऑफ स्किन के हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है। विदाउट मेडिकल स्टोर आप बोलेंगे कि ये सनस्क्रीन यूज करना है, ऐसा नहीं करना है। तो क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा क्या करेंगे तो उसका रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा और आप सेफ भी रहेंगे। बिल्कुल, और जब अब हम जान गए हैं कि सनस्क्रीन हमारे लिए कितना ज़रूरी है और उतना ही ज़रूरी है कि हमारे स्किन हमारे वर्क शेड्यूल के हिसाब से सही सनस्क्रीन हमें मिले, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएँ, उनकी सलाह लें। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर जयेश, बहुत अच्छी बातचीत आपसे हुई और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव ये सेशन रहा। बहुत कुछ हमें सनस्क्रीन को लेके, हमारी स्किन को लेकर समझने को मिला। थैंक यू सो वेरी मच वन्स अगेन। थैंक यू मैडम सो मच, थैंक यू और ऑडियंस।
Thank you. Viewers, thank you for your active participation in today's session. Stay connected to our beautiful Spotless Skin page. Stay beautiful, stay spotless, keep glowing. Goodbye. Good.